Okay, good afternoon, friends. I am Raj Deepak Singh, and as I've told you that I have created my new channel, so and I've also promised that uh, I'm going to post the syllabus for the Food Corporation of India AGM इन द फील्ड ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन. सो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो व्हाट आई हैव डन, आई हैव कवर द सिलेबस ऑफ management and ethics, agriculture and agriculture economy. Okay, so we first see the syllabus of management and ethics. So this is the syllabus for the management and ethics. ये जो सिलेबस है दोस्तों, जो FCI AGM का जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है और जो टेक्निकल है, दोनों में सेम ही है. बस यही है कि जो AGM के जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में 45 क्वेश्चन है और टेक्निकल में 30 क्वेश्चन है. नाउ एज यू हैव सीन दैट द इन मैनेजमेंट एंड एथिक्स जो टॉपिक्स हैं, जो सब टॉपिक्स हैं इसमें, वो फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, लीडरशिप, organizational change, ethics at the workplace and corporate governance, theories of ethics. One thing I just want to add is that this theory of ethics is very important topic in the field of management and ethics. So according to me, what I consider that out of 45 question, there are 8 to 9 question definitely in these theories of ethics. So do study very accurately of the subtopics of these theories of ethics. एंड अगला है मोरल इश्यूज इन बिजनेस, ethical principles in business and corporate governance. So this is the complete syllabus of management and ethics. You are not going to get any question out of this regarding management and ethics. Okay, और पढ़ना कैसे है मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ. देखो, मैनेजमेंट एंड एथिक्स के ये जितने भी आप टॉपिक्स देख रहे हो ना, इन सब टॉपिक्स के एक अलग अलग बुक आती है. सब टॉपिक्स की अलग अलग एक बुक आती है. तो जो अगर फ्रेशर होगा ना, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर फ्रेशर टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस इन लाइक 45 to 50 days. It is impossible for anyone who is fresher. I'm not talking about the one who have studies management and ethics. It's like they are very much comfortable of studying these topics. Okay, I'm only talking about the fresher who does not know ABCD of management and ethics. Now, what is the solution? I'm giving you the solution. The only solution what you have to do regarding the management and ethics, you have to take टॉपिक बाय टॉपिक. आप एक एक टॉपिक उठाओ. लाइक लेट सपोज फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है. आप क्या करो, ये टॉपिक उठाओ, एक दिन में एक टॉपिक उठाओ. आप क्या करो, इसको यूट्यूब पे जाओ और इसके 3-4 वीडियोस शॉर्ट लॉन्ग नहीं, नॉट फॉर ऑफ 30 मिनट्स के या 35 मिनट्स के मत देखो. आप क्या करो, 10 to 12 to 13 वीडियोस मिनट्स की वीडियोस होती हैं. आप उनकी 4 वीडियोस डिफरेंट सोर्स से देखो और आप क्या करो, बेसिकली एक हैंड रिटन नोट्स बना लो कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, नाउ अब आगे क्या करो, आप दूसरे टॉपिक्स के लिए अगले दिन ऐसे करो, फिर पर्सनैलिटी के लिए ऐसे करो, मोटिवेशन के लिए ऐसे करो. एवरी सिंगल टॉपिक आप ये प्रोसीजर को रिपीट करो. व्हाट यू सी दैट इन 10 to 15 days you have covered the entire management and ethics. और ये बेसिकली जो आपने कवर किया होगा, जो मुझे समझ में आया, क्योंकि मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ फ़िलहाल. तो इससे क्या होगा, आपको सबसे पहले तो यू आर गोइंग टू गेट एन ओवरव्यू ऑफ मैनेजमेंट एंड एथिक्स. यू एक्चुअली अंडरस्टैंड्स दैट what is actually going to ask in the exam. And the best part of doing this, you are going to get the overview of the entire syllabus of management and ethics. And in this particular procedure, what I have tell you right now, in this particular procedure, you are going to get covered at least 20 to 25 question out of those 45 question. यानी कि आप
अगर ये 10 दिन 12 दिन देते हो तो आप एक्चुअली में 20 से 25 क्वेश्चन कवर कर लोगे, वो 45 क्वेश्चन से जो मैनेजमेंट एंड एथिक्स से आने वाले हैं। और फिर जब ये हो जाएगा, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ डूइंग द सिलेबस ऑफ मैनेजमेंट एंड एथिक्स। जब ये आपका हो जाएगा, देन यू टेल मी, then I will upload the next video that what you have to do for those 15 questions, rest of the 15 to 20 questions जो आपके बच गए हैं, कि आपको उसको कैसे कवर करना है। then I will tell the next procedure what to do। और सीरियसली मैं बताऊं, आपको इसका बहुत ही बेनिफिट मिलेगा अगर आप ऐसे करते हो तो, मैनेजमेंट एंड एथिक्स के लिए। और इससे आपका एंटायर जो 45 क्वेश्चन है आप इजीली कवर अप कर लोगे विदाउट हेडेक। अगेन आई एम सेइंग, अगर आप 3-4 बुक या फिर आप 2-2 4-4 घंटे की वीडियो उठा करके देखने लगे, देन यू आर गोइंग टू एक्चुअली पजल योर सेल्फ दैट ओके हाउ वी आर। तब आपके पास एक पैटर्न नहीं रहेगा, आप किसी एक चीज़ को सीक्वेंशली नहीं पढ़ पाओगे। वॉट आई फील, ये मैंने आपको अपना ओवरव्यू दिया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा एक्चुअली में, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इससे आप एक्चुअली में 45 क्वेश्चंस आप पूरे कवर कर लोगे बहुत ही ईज़िली, और आपको पता नहीं चलेगा जब आप ये 2 प्रोसीजर करोगे। पहला जो मैंने आपको बताया उससे 22, उससे आपके 22 क्वेश्चन तो 100% हो जाएंगे कवर अप, और जो नेक्स्ट जो दूसरे पार्ट में मैं बताऊंगा उससे आप 15 to 20 क्वेश्चंस आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। सो दिस इज़ रिगार्डिंग द मैनेजमेंट एंड एथिक्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ लाइक एग्रीकल्चर। सो हम एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा सा जाएंगे। ये जो है ये मैंने PDF से उठाया है, जो मतलब FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जो नोटिफिकेशन में जो PDF डाला था, ये मैंने वहाँ से उठाया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक सेकेंड दो, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। ये आ गया, फिर वेट, अच्छा इतना ही बस, ठीक है, ओके। सो एक्चुअली में ये क्या है, ये जो इन्होंने सिलेबस दिया है, ये इन्होंने जो वेबसाइट पे जो इन्होंने सिलेबस डाला है, ये इन्होंने देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये इन्होंने, मैं आपको यही चीज़ दिखाना चाहता था, ये इन्होंने देखो क्या लिखा है एक्चुअली में, यहाँ पे इन्होंने असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल के लिए दिया हुआ है। ये सिलेबस टेक्निकल का है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है। ये सिलेबस एक्चुअली में टेक्निकल का दिया हुआ है, एग्रीकल्चर का दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये जो, क्योंकि ये जो सिलेबस है ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि दोनों का जो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इकॉनमी है वो सेम है, ठीक है। तो आपको ये जो है ये सिलेबस आपको कवर अप करना पड़ेगा। और मेरे, अगर आप फ्रेशर हो तो मेरी मानो तो आप सिर्फ ये कवर करो पहले, ये जो इतना रेड लाइन से जो मैंने किया है, आप इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, एम्फेसिस करने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू मी। इसमें बेसिकली क्या क्या आ जाता है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप आ जाएगा, स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, सीरियल्स एंड पल्सेस वगैरह वगैरह, इंट्रोडक्टरी जेनेटिक्स ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्रॉप प्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, फूड एंड एग्रीकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन हो गया, एंड फिर आपका ये है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड ग्रेन्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये आप ऊपर ऊपर पढ़ लेना थोड़ा बहुत, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद मैं एक चीज़ और दिखाना चाह रहा था, एक सेकंड, ये तो हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद आपको, ये तो एग्रीकल्चर का मैंने बता दिया आपको पूरा, आप इस एग्रीकल्चर को यहाँ से कर लेना, ठीक है। ये बहुत ही है, ये मोर देन एफिशिएंट है एग्रीकल्चर का। अब एक चीज़ मेरी बात सुन लो आप पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ, इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि पिछले वाले वीडियो में मैंने ये बताया था कि जो एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर
इकॉनमी है वो कंप्यूटर अवेयरनेस के साथ है। और ये टोटल जो मिला कर के हैं, ये टोटल कितने क्वेश्चंस कंसिस्ट करते हैं? टोटल ये 45 क्वेश्चंस को कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गया 45। अब ये 3 चीज़ों में बटे हुए हैं, समझ लो इसको अच्छे से। ये एक 15 हो गया आपका एग्रीकल्चर, 15 हो गया आपका एग्रीकल्चर इकॉनमी, और 15 हो गया आपका कंप्यूटर अवेयरनेस, ठीक है। नाउ अगर आप ये सोच के जाओगे कि अरे हमें तो पूरा सिलेबस पढ़ना है, अब आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये जो 15 क्वेश्चंस के लिए आपको मैं एक बात बता दूँ, एक डिग्री होती है, एक सेमेस्टर्स होते हैं, पूरा 6 महीने का। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दे हैव अ लॉट बंडल्स ऑफ बुक्स फॉर दिस एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी. So you are not at all going to complete the entire syllabus, or like you feel embarrassed when you take all this. और इससे बाहर निकलने का एक सॉल्यूशन मैं आपको दे देता हूँ एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए, क्योंकि मैंने एग्रीकल्चर का आपको टॉपिक्स तो दे दिया है। एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए मैं स्पेसिफिकली ये 15, सबसे पहले मैं ये 15 नंबर की बात करता हूँ, ये वाले 15 नंबर की। एक सेकंड, ये वाले 15 नंबर की मैं बात करता हूँ, ये वाले, ठीक है। ये जो 15 नंबर है, इसके लिए मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड कर रहा हूँ, आप वो वीडियो फॉलो करो। उसमें क्या है, वो वीडियो लाइक 5 घंटे की वीडियो है, ठीक है। उसमें पूरा एग्रीकल्चर इकोनॉमी दिया हुआ है, मतलब वो सर ने पूरा एग्रीकल्चर इकोनॉमी पढ़ाया हुआ है। और अगर आपने वो वीडियो देखा, वो 5 घंटे का, आप उसको स्पीड करके भी देख सकते हो, लाइक 4 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा वो वीडियो क्या कर रहा है, दैट वीडियो इज़ एक्चुअली कवरिंग द एंटायर सिलेबस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमी, समझ रहे हो आप? तो और आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियो you can watch again that video, so that you can grasp all the concept of agriculture economy. और जब आप once you do this process of watching the video twice, तो आपको क्या हो जाएगा कि आपका 15 क्वेश्चन अब कहीं नहीं जा रहा, आपका ये फिक्स हो जाएगा, एग्रीकल्चर इकोनॉमी यहाँ से फिक्स हो जाएगा, ठीक है। आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमी यहाँ से फिक्स हो जाएगा। तो फिर आपको क्या करना है बेसिकली, अब आपको जो करना है वो एग्रीकल्चर के लिए करना है। तो एग्रीकल्चर के लिए मैं एक वीडियो और आपको बाद में बताऊंगा। पहले तो आप ये जो मैं अभी इस वीडियो में बता रहा हूँ इसको अप्लाई करो, क्योंकि ये जो मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ ये सिंपलेस्ट वे है इस एग्ज़ाम्स के टॉपिक्स तक पहुँचने का, बहुत ही डीपली। क्योंकि अगर जो फ्रेशर होगा ना, वो बहुत तेज़ जंबल होगा इस एग्ज़ाम में, याद रखना। जो फ्रेशर होगा वो बहुत ही जंबल हो जाएगा इस एग्ज़ाम में। मैंने आपको 15 और 30 क्वेश्चंस का पूरा ओवरव्यू दे दिया है, ठीक है ना। अब आप बेसिकली क्या कर सकते हो, आपके मैंने टोटल कितने क्वेश्चंस कवर अप कर दिए, 45 क्वेश्चंस। तो आपके, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा बढ़ा लूँ, ओके, हाँ। तो फिर मैंने बोला था आपके मैंने 45 क्वेश्चंस तो उसमें बता दिए मैनेजमेंट एंड एथिक्स के, 15 क्वेश्चन मैंने इसके बता दिए एग्रीकल्चर इकोनॉमी के, और ये मैंने आपके श्योर शॉट बता दिए हैं कि इसके लिए आपको 60 नंबर्स के लिए कैसे आपको प्रिपेयर करना है। जो रेस्ट ऑफ द 15 है, जो एग्रीकल्चर पार्ट है, उसका मैंने आपको सिलेबस शेयर किया है। अब उसके जो कंटेंट है उसके बारे में मैंने आपको उतना नहीं बताया है। तो अगेन मैंने जो सिलेबस शेयर किया है, आप उसको भी थोड़ा बहुत अप्लाई करना। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा एग्रीकल्चर के लिए, सीरियसली, बिकॉज राइट नाउ इवन आई हैव नॉट रीच टिल these agriculture topics. What I am targeting right now, these 45 और दिस क्या बोलते हैं राइट नाउ, जो मैं व्हाट आई एम टारगेटिंग दिस 45 एंड दिस 15 क्वेश्चन, ओके। तो ये मैं 45 और 15 क्वेश्चंस को टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 45 आपका मैनेजमेंट एंड एथिक्स का है, और ये 15 आपका एग्रीकल्चर का है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी का, ठीक है। सो दिस इज़ द वीडियो ऑफ लाइक FCI AGM, ओके। नाउ एक सेकंड, मुझे ये स्लाइड बंद कर लेने दो, फिर हम थोड़ा और डिस्कस करते हैं।
वेट फॉर मिनट. ओके, इसको हम चलाते हैं. ये चल रहा है. हाँ, ठीक है. तो जैसा कि मैंने आपको वो सिलेबस तो दिखाई दिया है. अब एक सेकेंड. ठीक है, ये सारे मैंने आपको सिलेबस दिखा दिए. मैनेजमेंट एथिक्स के हो गए, ये एग्रीकल्चर का. इसमें आप थोड़ा बहुत पैटर्न्स वगैरह भी देख लेना आपको अगर कोई डाउट होगा तो, क्योंकि ये पूरा मैंने वेबसाइट फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट से उठाया. ठीक है, और ये तो हो गया. मैं आपको आखिरी में एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ. what I'm trying to say that what I have tell you, please apply this initially for 2 to 3 to 4 days. Once you apply, you are going to get the benefit of this, and after doing this you just comment me, or you ask me, sir, what is the next procedure. और मैं आपको एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ, that if you have any doubt in any topic or sub topic of any section, like in management and ethics, agriculture or agriculture economy, I will definitely come to your comment, and based on the majority of the comment, I'm going to have a video on those topics, on those combined topics जिसमें आपको डाउट हो गया. यानी जितने भी कमेंट में टॉपिक्स होंगे जो डाउटफुल हैं, मैं वो सारे डाउटफुल टॉपिक्स के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, and I will cover the entire topics of that particular doubtful topics, I can say that. So you can comment on your doubtful topics कि सर हमें ये समझ नहीं आ रहा, आप हमें ये बता दो. क्योंकि लाइक मैं अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, लाइक आई यूज़ टू टीच इन कोचिंग्स ऑल्सो, लाइक इन मैं अपने क्या बोलते हैं यहाँ पे सिविल लाइंस के कोचिंग्स में पढ़ाता हूँ. बहुत बड़ा नहीं है, मतलब लाइक आई हैव 15 to 18 स्टूडेंट्स, लेकिन ठीक है वो भी. एंड इवन आई एम ऑल्सो गिविंग दैट एग्ज़ाम, सो इट एक्चुअली एडवांटेज में, बिकॉज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ. आई हैव अ गुड कमांड ऑन मैथ्स एंड रीजनिंग, प्लस जनरल अवेयरनेस एंड current affairs, and plus computer awareness. I have good command on this. Even I am trying to polish myself in management and ethics, agriculture and agriculture economy. By doing this, what I am doing right now is actually actually have a uniting my whole syllabus as a strength, so that I can cover the entire 180 question which are going to ask in the exam. So this is the complete video, complete details regarding the FCI AGM General Administration syllabus. So so this is it. And if you have any doubt, please comment, and if you like the channel, please do subscribe, because once you subscribe, I feel that yes, actually students are taking interest in my videos, and based on that I'm going to make more videos. And and last thing, if you do not want to like, don't like it. But if you want to have but if you have any doubt, please do comments. I am always eager to see your comments, your doubts, whether you have doubts or not. Okay, so please subscribe the channel and do comments. Okay, do comments. Thank you.